رام حضرات حاضرین و سامعین اور میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ 5 جمعوں سے آپ حضرات کے سامنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نصیحتیں جو آپ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اپنی ساری امت کو فرمائی، ان کا سلسلہ وار تذکرہ ہو رہا ہے، جن میں سب سے پہلی نصیحت یہ تھی کہ اے ابو ذر، غریبوں سے محبت کرو اور غریبوں کو اپنے قریب رکھو۔ دوسری نصیحت یہ تھی کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھو، اوپر والوں کو نہ دیکھو۔ تیسری نصیحت یہ تھی قرابت داروں کے ساتھ تعلق کو قائم رکھو، اگرچہ وہ تمہارے ساتھ تعلقات کو توڑ دیں تب بھی تم تعلقات بحال رکھو۔ چوتھی نصیحت یہ تھی کہ کسی سے سوال نہ کرو، اور پانچویں نصیحت یہ تھی کہ حق کی بات اچھے طریقے سے، حق بات حقانیت کے ساتھ ضرور کہو، اگرچہ سننے والے کو وہ کڑوی ہی محسوس کیوں نہ ہو۔ اس پہ کچھ باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے کی تھی، اور کچھ آج کے جمعے میں انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ گفتگو کا آغاز یہاں سے ہوا تھا کہ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ، جو اسلامی تاریخ کا ایک بہت بڑا نام ہے، جن کی سیاسی کوششیں پاکستان کی صورت میں امت مسلمہ کو ایک خوبصورت ملک دے کے گئی، اور جن کا اعتراف قائد اعظم محمد علی جناح نے یوں فرمایا کہ کراچی میں جب پاکستان کی پرچم کشائی ہوئی تو قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا کہ میں ایک آج اس شخصیت کے ذریعے سے پاکستان کا پرچم لہروانا چاہوں گا کہ جن کی جد و جہد اور کوشش میرے ساتھ نہ ہوتی تو شاید آج پاکستان دنیا کے نقشے پہ نہ ہوتا۔ تو کراچی جو پاکستان کا دارالحکومت تھا، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے وہاں پہ پاکستان کا پرچم لہرایا، اور ڈھاکہ جو مشرقی پاکستان کا دارالحکومت تھا، وہاں پہ بھی یہ سعادت ایک عالم دین کو ہوئی، اور وہ شخصیت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ تھے۔ تو یہ لوگ سیاسی میدان کے شاہ سوار ہونے کے ساتھ ساتھ علمی اور روحانی دنیا میں ایک بہت بڑا مقام رکھتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ حضرت حق بات آج کل لوگ سننا نہیں چاہتے، اور اگر حق بات کی جائے تو فتنہ برپا ہو جاتا ہے، تو آپ نے کیا خوبصورت بات فرمائی کہ اگر حق کہنے والے کی نیت صاف ہو، بات بھی حق ہو اور انداز بھی حقانیت والا ہو، ایسی بات پہ کبھی فتنہ برپا نہیں ہوتا۔ اگر آپ کی نیت دوسروں کو نیچا دکھانے کی ہو، حق کی آڑ میں آپ باطل کا پرچار کر رہے ہو، حق کی آڑ میں آپ کسی کی عزت کو چوک میں اچھالنے کا پروگرام رکھتے ہو، تو وہ بات تو حق نہیں ہے، وہ تو انتقام ہے، اور اس انتقام میں تو فتنے برپا ہوتے ہیں۔ لہذا جب بھی بات کی جائے، حق بات کو حقانیت کے ساتھ اور اچھی نیت کے ساتھ اگر کہا جائے، اللہ پاک اس بات کے اندر اثر فرماتے ہیں۔ تو حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کے یہ الفاظ ایک اصول بن گئے، میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے۔ اور حدیث پاک میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو جو حق ہو، ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے برملا اس کا اعلان کرنے والے کو مجاہد، اور اس گفتگو کو جہاد قرار دیا، اور صرف جہاد نہیں بلکہ فرمایا افضل الجہاد، سب سے بہترین جہاد یہ ہے کہ آپ حق بات ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے بھی اپنی جان کا خوف کیے بغیر کہہ دیں، اسے حضور نے افضل الجہاد کہا۔
اور میں نے اس ضمن میں آپ کے سامنے مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ کی جو سوانح عمری اور آپ کی دین کے لیے خدمات ہیں ان میں سے ایک مختصر سی جھلک پیش کی تھی کہ جو انہوں نے حق کا برملا اعلان کیا ان بادشاہوں کے سامنے کہ جو واقعتاً بادشاہ تھے، ان کی بات قانون تھا۔ اکبر اعظم 49 سال تک اس نے برِ صغیر پہ حکومت کی، اکبر اعظم کا خطاب اس نے پایا۔ اور جب کہتے نا جب کوئی چیز حد سے بڑھ جاتی ہے تو وہ نعمت بھی زہر بن جاتی ہے۔ اللہ کی دی ہوئی سلطنت، اس کی گرفت جب اس پہ مضبوط ہو گئی اور وقت بہت زیادہ اللہ نے اسے حکومت کا دیا، اس کے لیے یہی حکومت، یہی اقتدار زہر بن گیا اور اس نے اپنے آپ کو اکبر اعظم کہا اور اکبر مغل کی جگہ اس نے اپنے آپ کو اللہ اکبر کہہ دیا۔ یہ حکومت اس کے لیے زہر بنی اور مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے برملا اعلان کیا، کہا کہ لوگوں تمہارا بادشاہ گمراہ ہو چکا ہے، اسے دوبارہ سے تجدید ایمان کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ اپنے ایمان کی تجدید نہیں کرے گا، یہ کافروں کی موت مرے گا، اس کی حرکتیں مسلمانوں والی نہیں ہیں۔ بادشاہ نے مباہلے کے لیے چیلنج کیا تو وہ اپنے لشکر اور کروفر کے ساتھ آیا اور حضرت اپنے مریدین پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس، لیکن جن کے کپڑے اللہ کو روئے زمین پہ سب سے زیادہ محبوب تھے، ان پھٹے پرانے کپڑوں کے اندر جو پیوند لگے ہوئے تھے، میں سمجھتا ہوں اللہ کے ہاں ان کی چمک ستاروں کی طرح تھی۔ یہ پہنچے اور اللہ نے آندھی کو بھی پہنچا دیا، وہی آندھی جو غزوہ خندق میں کافروں کے لیے شکست کا پیغام لے کے آئی۔ خیمے اکھڑ گئے، آگ بجھ گئی، ہانڈیاں الٹ گئی، جانور رسے توڑ کے بھاگ گئے اور پیٹ پھیر کے بھاگتے ہوئے کافروں کو دیکھ کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ میرا ایک جملہ یاد رکھنا، یہ جا رہے نا، اب یہ کبھی نہیں آئیں گے، اب ہم جائیں گے۔ اور پھر حضور گئے فتح مکہ کے موقع پر، ایسے گئے کہ آنے والے بھی میرے نبی کے ساتھی بن گئے، بھاگنے والے بھی میرے نبی کے جانثار بن گئے۔ تو حق بات ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے کہنا اسے افضل جہاد قرار دیا گیا، اور ہمیشہ حق بات کہنا اگرچہ کڑوی ہو، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، آپ کی یہ نصیحت ہے۔ اور یاد رکھیں حق کبھی کڑوا نہیں ہوتا، کہنے والے کا انداز کڑوا ہوتا۔ اگر ہم اپنے الفاظ کو خوبصورت جامہ پہنائیں، طریقہ ہمارا اچھا ہو تو حق بات اثر بھی کرتی ہے اور کسی کو کڑوی بھی نہیں لگتی۔ اگر کوئی آدمی اسے کہا جائے کہ تیرے والد نے یہ کیا، آپ کے والد محترم جو میرے بھی والد کی طرح ہیں، انہوں نے ایسا کیا ہے جو مجھے اچھا نہیں لگا، سننے والا سنے گا۔ اور اگر اس سے یوں کہا جائے کہ تیری ماں کا خاوند آیا تھا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، آپ اچھی بات بھی کریں گے، یہ فتنہ اور فساد برپا کر دے گی۔ کہنے والے کے انداز میں مٹھاس ہونی چاہیے، گفتگو میں کڑواہٹ نہ ہو تو بری بات بھی اچھی بن جاتی ہے، اچھی تو ہوتی ہی اچھی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حق بات کو حقانیت کے ساتھ اور صاف نیت کے ساتھ اگر کہا جائے تو ایسی باتیں اثر کرتی ہیں اور زندگیاں بدل دیتی ہیں۔ مولانا شیخ حسین احمد مدنی رحمہ اللہ برِ صغیر کی تاریخ کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ برِ صغیر میں شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ، آپ نے ایک تحریک شروع کی اور اس تحریک کا نام تحریک خلافت تھا۔ جب اس تحریک کا اعلان ہوا، انگریز نے اسے اپنے خلاف بغاوت سمجھا۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ آپ کے ساتھ آپ کے شاگرد مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ بھی، آپ کو بھی گرفتار کر کے مالٹا کے جزائر میں پہنچا دیا گیا۔ 6 مہینے گزرے، شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ کا انتقال ہو گیا، دونوں رہا ہوئے۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ نے تحریک خلافت کی کو آگے بڑھاتے ہوئے خلافت کانفرنس کا انعقاد کیا، اور یہ دور وہ دور تھا جب انگریز خونخوار بھیڑیے کا روپ دھار چکا تھا۔
अंग्रेज से पूछने वाला कोई नहीं था, अंग्रेज का लफ्ज कानून था। अंग्रेज की तलवार उठती थी तो वो अपने ज़ौम में अपने बागियों को कत्ल कर रहा था। अंग्रेज से पूछने वाला कोई नहीं था। आलिम जाहिल की तमीज मिट चुकी थी, बड़े छोटे का फर्क खत्म हो गया था। खिलाफत कॉन्फ्रेंस के स्टेज पे खड़े होके मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमहुल्लाह ने तारीखी जुमले इरशाद फरमाए। आपने फरमाया, लोगों, अंग्रेज ने बड़े सगीर पे जालिमाना कब्जा कर रखा है। अंग्रेज हमारे मजहब का ख्याल नहीं रखता, अंग्रेज हमारी तहजीब को पामाल कर रहा है, अंग्रेज हमारी रवायात को रोंद रहा है। अगर अंग्रेज ने ये रविश जारी रखी, अगर उसने हमारी मजहबी, हमारी सकाफती रवायात का ख्याल न रखा, मैं फतवा देता हूं कि इस अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है, अंग्रेज की फौज में शामिल होना हराम है। जो मुसलमान अंग्रेज की फौज में भर्ती होगा, लड़ता हुआ मारा जाएगा, वो शहादत की मौत नहीं बल्कि हराम मौत मरेगा। अंग्रेज तक ये बात पहुंचती है। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमहुल्लाह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करके मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमहुल्लाह के खिलाफ केस चलाया जाता है। कराची के जिना हाल में अदालत लगती है और उस अदालत के अंदर अंग्रेज जज मसनदे अपनी मसनद पे बैठा हुआ है। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमहुल्लाह को पाबंदे सलासल करके बेड़ियों में, हथकड़ियों में जकड़ के अंग्रेज की अदालत में पेश किया जाता है और मौलाना से कहा जाता है, मौलाना, जो अल्फाज आपने कहे हैं, आपको मालूम है ये गद्दारी है? आपने कहा, मुझे मालूम है ये गद्दारी है। अंग्रेज ने कहा, आपको मालूम है इसकी सजा क्या है? मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमहुल्लाह के कंधे पे सफेद रंग का एक कपड़ा था। आपने उसकी तरफ इशारा किया, कहा कि उसकी सजा ये है। अंग्रेज ने पूछा कि ये इसका क्या मतलब है? कहने लगे, इसका मतलब मौत है और मौत का माना कफन है। और मैं जब देवबंद से चला था, मैं कफन का ये टुकड़ा साथ लेके चला था। अंग्रेज जज ने अगली बात कही, कहने लगा, आपको मालूम नहीं कि अंग्रेज जब गद्दारों को फांसी पे लटकाता है तो उनके मजहब के मुताबिक उनकी आखिरी रसूमात अदा की जाती है। मुसलमानों को कफन भी अंग्रेज मुहैया करता है, आपने कफन लाने की तकलीफ क्यों की? सुभान अल्लाह। उलाइका आबाई फजिना बिमिस्लिहिम इदा जमातना या जरीर अल मुजामिओ। अरबी शायर कहता है, ये है मेरे आबा व अजदाद, ये है मेरे बड़े, ये है मेरी तारीख, ये है मेरा नसब। उलाइका आबाई फजिना बिमिस्लिहिम। अगर तू मुकाबला करना चाहता है ना, तो मेरे इन आबा जैसे आबा लेके आ, तब मुकाबला भी होगा और मजा भी आएगा। शेख हुसैन अहमद मदनी रहमहुल्लाह ने फरमाया, हाँ, मुझे मालूम है कि अंग्रेज कफन भी फराहम करता है, लेकिन उस रब की इज्जत की कसम जिसने मुझे इस्लाम जैसी दौलत से मालामाल किया है, मैं अल्लाह के हुजूर में अंग्रेज का कफन पहन के जाना भी अपनी तौहीन समझता हूं। अंग्रेज का कफन पहनूं और अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाऊं, ये मैं रब के दरबार की भी तौहीन समझता हूं, अपनी भी तौहीन समझता हूं। और मुझे ये कफन पहनते हुए भी शर्म महसूस होती है। हक के जुमले जब हक्कानियत के साथ निकलते हैं, खुदा की कसम वो तख्तों को हिला देते हैं। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमहुल्लाह का ये जुमला अंग्रेज पे लर्जा तारी कर गया। उसने मौत का फैसला लिखने के बजाय मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमहुल्लाह के लिए रिहाई का फैसला लिख दिया। आपको रिहा कर दिया गया और पीछे वो जुमले थे जो हक भी थे, हक्कानियत के साथ भी थे, नीयत भी साफ थी। इन अकाबिरीन ने अंग्रेज को ललकारा और मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी रहमहुल्लाह वाशगाफ अल्फाज में ऐलान किया करते थे कि अगर मुझे वो चींटी नजर आ जाए, चींटी जो अंग्रेज को काटेगी, मैं उस चींटी के सामने खंड डालूंगा, उसके सामने चीनी डालूंगा, वो मेरी दोस्त है क्योंकि वो अंग्रेज की दुश्मन है। मैं सुअर का वो रेवड़ चराने के लिए तैयार हूं। मेरे मजहब में सुअर हराम है, सुअर का नाम लेना भी अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन अगर उसके दिल में अंग्रेज की नफरत है, अताउल्लाह शाह बुखारी असा लेकर
डंडा लेकर सूअर का वो रेवड़ चलाने के लिए तैयार है जिसके सीने में अंग्रेज की नफरत भरी हुई हो। ओ मेरे भाइयों, उन लोगों ने अंग्रेज की दुश्मन चींटियों से प्यार किया, उनके रगो पै में अंग्रेज की नफरत भरी हुई थी। ये वो हक था, ये वो हक्कानियत थी जिसका नतीजा पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह की वो तहरीक चली। आज मैं और आप आजाद फिजाओं में सांस ले रहे हैं, और ये आजाद फिजाएं, इनकी कीमत क्या है। आखिरी मुगल ताजदार जिल्ले इलाही बहादुर शाह जफर को जब हिंदुस्तान में कैद किया गया, सारा खानदान लहूलुहान कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया, और चंद मुहाफिजों के हमरा, चंद खानदान के अफराद के हमरा 35 लोग हिंदुस्तान से जलावतन हुए, रंगून में पहुंचाए गए। और रंगून में जो अंग्रेज अफसर था, वहां पे बहादुर शाह जफर के लिए इतना उसके दिल में आया कि बादशाह को जेल में नहीं रखा जाए, अपने घर का गिराज खाली करके अंग्रेज ने बहादुर शाह जफर को उसमें कैद किया। और बहादुर शाह जफर 4 साल तक अंग्रेज के गैराज में कैद रहा। और जब जिंदगी की आखिरी सांस उखड़ने लगी, बहादुर शाह जफर ने अपनी खात्मा को अंग्रेज के पास भेजा, और पैगाम ये था कि खुदा का वास्ता, मैं मर रहा हूं, बस आज खिड़की खोल दो, मैं 4 साल के बाद आजाद फिजा के अंदर सांस लेना चाहता हूं। अंग्रेज आया, लेकिन उससे पहले बहादुर शाह जफर की रूह परवाज कर चुकी थी। आजादी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन इस आजादी के पीछे जिन लोगों ने हक की खातर अपनी जानें लगा दी, अपना माल लगा दिया, अपनी इज्जत कुर्बान कर दी, अपने नामूस को कुर्बान कर दिया, अपनी औलादों को कटवा दिया, अपनी गर्दनों पे छुरियां, अपनी गर्दनों में फांसी के फंदे डाल दिए। खुदा की कसम, हम उन लोगों के मकरूज हैं। हम इस आजादी की कदर नहीं कर रहे। हम इस आजादी को रब से आजादी समझते हैं, इस्लाम से आजादी समझते हैं, मजहब से आजादी समझते हैं, शरीयत से आजादी समझते हैं, माँ बाप से आजादी समझते हैं। हम समझते हैं उन अकाबिरीन ने आजादियां इसलिए दी थी कि हम रब के नाफरमान बन के सीना तान के अपने रब को ललकारते रहे। आजादी की लज्जत तब आती है जब आजादी देने वाले से प्यार हो जाए, अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा किया जाए, मकसद आजादी को समझा जाए। इसके पीछे उलमाए हक की वो कुर्बानियां हैं। जब एक अंग्रेज कहता है कि मैं देख रहा था, अपने खेमे में था, मुझे बारबेक्यू की बू आई, गोश्त के जलने की बू आई। मैंने सोचा कि कोई गोश्त भून रहा है। मैं अपने खेमे से जब बाहर निकला, मैं क्या देखता हूँ, चंद मुल्ला है, चंद मौलवी है, जिनके सर पे नबी वाली दस्तार है, जिनके चेहरे पे हुजूर वाली सुन्नत है, जिनका लिबास हुजूर वाला है। अंग्रेज एक एक को बुलाता है और उनसे ये कहता है कि सिर्फ एक लफ्ज बोल दो कि हम अंग्रेज के गद्दार नहीं, वफादार है। मजाल है उन दरवेशों की जुबान से ये जुमला निकलता हो, बल्कि वो खुशी से ये जुमला कहते थे, मुस्तहिक के दार को हुक्म नजरबंदी मिला, क्या कहूं कैसे रिहाई होते होते रह गई। अगर उनकी जान बच जाती थी, वो समझते थे हमारी रिहाई रुक गई, हम फिर अंग्रेज की कैद में चले गए। वो अंग्रेज लिखता है कि ये मुल्ला, ये मुसलमान यही जुमले कहते, हम अपने रब के वफादार हैं, अंग्रेज के गद्दार हैं। आग जल रही थी, कोयले दहक रहे थे, और उस पे एक मौलवी को डाला जाता, वो जल जाता, पीछे वाले देखते रहते, लेकिन उनके माथे पे शिकन नहीं आती थी, उनके हाथ नहीं कांपते थे, उनकी आंखों से आंसू नहीं निकलते थे, उनके पांव नहीं लरसते थे। इसे हक कहा जाता है, और इसे अंदाजे हक कहा जाता है, और हक का साथ यूं दिया जाता है, हक का ऐलान यूं किया जाता है। इन लोगों ने यह दरस लिया था, अपने आका से लिया था, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिया था। जब मक्का के बाजार हजूरा के अंदर मंडी लगती है, और उस मंडी में अतराफ के सारे मुल्कों के लोग आके अपना माल बेचते हैं, और वो माल बेच के पूरे साल का अपना राशन और खर्चा जमा करते हैं। यमन का एक शहरी अपने 3 ऊंट लेके उस मंडी के अंदर आता है,
जुबैद शहर का रहने वाला जुबैदी नाम का ये आदमी अपने खूबसूरत और शानदार 3 ऊंटों को लाके वहां पे खड़ा करता है और उनकी कीमत वो लगाता है। यूं समझिए कि वो 3 ऊंटों के 6 लाख रुपए मांग रहा है। ऊंट बड़े खूबसूरत हैं, हर बंदा उन्हें लेना भी चाहता है, लेकिन जेब में पैसे किसी के नहीं है, रालें टपकती है और अरबों को ऊंटों से कितना प्यार है। आप कल की ये खबर मुलाहिजा करें, आपको अंदाजा होगा कि सऊदिया में ऊंटों का मुकाबला हुसन हुआ और उस मुकाबला हुसन के जीतने वाले के लिए जो इनामी रकम मुकर्रर की गई, वो इनामी रकम पाकिस्तानी 12 अरब रुपए बनते। जिसका ऊंट खूबसूरत है उसे 6 करोड़ 60 लाख डॉलर मिलेंगे और ये 6 करोड़ 60 लाख डॉलर 180 रुपए का डॉलर है, ये तकरीबन 12 अरब रुपए बनते हैं। ये ऊंटों से प्यार की अलामत है। सारे उन ऊंटों को देख रहे हैं, जेब में हाथ मारते हैं लेकिन जेब इजाजत नहीं देती। सारे कहते हैं शानदार है, कीमत भी तू बिल्कुल सही मांग रहा है। उधर अरब का बदमाश मक्का का गुंडा अबू जहल आ गया और उसने कहा जुबैदी ये ऊंट कितने में बेचोगे? कहा जी 6 लाख रुपए में। उसने कहा 6 लाख तो नहीं, मैं इन तीनों के 2 लाख दूंगा। उसने कहा खुदा का खौफ करो, ये 2 लाख के 3 तुम्हें नजर आते? उसने कहा फिर बेच के दिखाओ, फिर इस मंडी में बेच के दिखाओ। अबू जहल का रेट लग गया था, अब किसकी मजाल थी उससे ज्यादा रेट लगाता, दुश्मनी पालता और अबू जहल जैसे अय्यार के साथ दुश्मनी मोल लेता। वो जुबैदी शाम तक खड़ा रहा, किसी ने उसके ऊंट न लिए। वो अरब के बड़े बड़े लोगों के पास गया कि लोगों मेरे साथ जुल्म ना करो। किसी ने कहा हम अबू जहल का मुकाबला नहीं कर सकते। फिर किसी ने उससे कहा तू परेशान ना होना, जा काबतुल्लाह में, वहां एक चांद सा चेहरा बैठा होगा जिसके साथ सितारे होंगे और उसे तू देखते ही पहचान लेगा। वो कोई आम इंसान नहीं है, वो यतीमों का सहारा है, वो मोहताजों का पैगंबर है, वो जालिम का दुश्मन है, वो मजलूम का साथी है, वो बातिल का दुश्मन है, वो हक का साथी है, वो हक का साथ देता है चाहे कोई भी हो। वो गया, हरम में हुजूर बैठे हुए थे, साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक थे, उमर फारूक थे, साथ बिन अबी वक्कास थे रजी अल्लाह ताला अन्हुम। ये 4 हजरात तशरीफ फरमा थे। जुबैदी ने जाके हुजूर को सलाम किया और सलाम करने के बाद कहा ए हाशिम के बेटे, ए अब्दुल मुत्तलिब के बेटे, ए अब्दुल्ला के लफ्ते जिगर, ए हाशमी खानदान के फर्द, ए अजीम इंसान, तेरा खानदान तो बड़ा आला था लेकिन तेरी कौम जुल्म पे उतर आई है। अगर तुम ऐसे ही जुल्म करोगे कौन आएगा तुम्हारी मंडी में? तुम खाना कहां से खाओगे? तुम्हारे लोगों ने जुल्म शुरू कर दिया है। हुजूर खड़े हुए, बड़े प्यार से पूछा ए जुबैदी बता तेरे साथ हुआ क्या है? उसने कहा मेरे ये ऊंट हैं, इतने खूबसूरत और शानदार हैं। एक जालिम आया, उसका नाम अबू जहल, अबुल हिकम उस वक्त उसका नाम था। अमर बिन हशाम आया, उसने रेट बहुत कम लगाया, अब कोई खरीदता ही नहीं है। मैं परेशान हूं, मेरा सरमाया जाया होगा, मेरे सारे साल की मेहनत जाया होगी। हुजूर ने फरमाया तू फिक्र न कर, मेरे साथ आ। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। जहां पे वो ऊंट थे आप सामने खड़े हो गए। पूछा कितने में बेचोगे? उसने कहा जी 6 लाख रुपए में। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 लाख रुपए अदा किए और अदा करने के बाद ऊंट खरीद लिए। अबू जहल भी देख रहा है, सारा बाजार देख रहा है। हुजूर उधर ही खड़े हो गए, आपने बोली लगाई और जितने में आपने 3 ऊंट खरीदे थे, खड़े खड़े मेरे नबी ने 2 ऊंट बेच दिए और तीसरा ऊंट हुजूर को नफे में बच गया। आपने तीसरा ऊंट बेचा और बेचने के बाद सीधे रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के यतीमों के घर गए, अब्दुल मुत्तलिब खानदान की बेवों के घर गए, जिनका कोई नहीं था उनके सहारा बन के गए, जिनके चूल्हे बुझे हुए थे उन्हें जलाने तशरीफ ले गए, जिनकी आंखों में आंसू थे वो पूछने चले गए। मेरे नबी खाना लेके, राशन लेके गरीबों के घरों से फारिग होके वापस आए। सामने अबू जहल खड़ा था। हुजूर ने उसे ललकारा, सामने बुलाया और कहा तूने जुल्म क्यों किया है? तू मक्का को बदनाम क्यों कर रहा है?
अबू जहल सुन रहा था और मेरे नबी कह रहे थे, कहते हैं हुजूर के सामने अबू जहल की आंखें नहीं उठ रही थी, लोग तमाशा देख रहे थे, इसे हुआ क्या है। हुजूर ने जो आखिरी जुमला इरशाद फरमाया वो क्या ही शानदार जुमला था। फरमाया, अबू जहल अगर आज के बाद तूने किसी पे जुल्म किया तो मैं तेरा वो हाल करूंगा तेरी नस्लें याद रखेंगी, मैं तेरा वो हाल करूंगा तेरी नस्लें याद रखेंगी। इतना बड़ा जुमला कह के जब हुजूर चले गए, उसके दोस्त आए, काफिर आए, कहा तू इतना बड़ा आदमी, इतना बहादुर, तुझे हुआ क्या था? तेरी जुबान बंद हो गई, तेरी आंखें नहीं उठ रही थी, तुझे हुआ क्या था? उसने कहा मुझे ये हुआ था कि जब वो बात कर रहे थे तो उनके पीछे मैंने अपनी आंखों से देखा एक लश्कर खड़ा था और उस लश्कर के हाथ में लंबे लंबे नेज़े थे और उन्होंने वो नेज़े मुझ पे तान रखे थे, वो मैं अपनी आंखों से देख रहा था और वो मुझे घूर रहे थे। मुझे यूं लगा अगर मैं एक जुमला भी कहूंगा ये नेज़े मेरे बदन से पार हो जाएंगे। ये मेरे रब की मदद थी और हुजूर का ये पैगाम है, हक का साथ दो। मेरे भाइयों, आपकी दुकानों पे, आपकी मार्केटों में झगड़े तनाज़ात होते हैं, ये आपका इम्तिहान होता है कि आप खानदान को देखते हैं, कौमियत को देखते हैं, नस्ब को देखते हैं, अपने इलाके को देखते हैं कि हक को देखते हैं। अगर आपने हक को देखा ये ईमान है, ये हुजूर की नसीहत पे अमल है। अगर कहा ये मेरे इलाके का है, ये मेरे खानदान का है, उसका साथ दिया जाए, खुदा की कसम ये इस्लाम का मिजाज नहीं है। कौमियत तो हो सकती है, लिसानियत, इलाकाइयत और रस्म को आपने बचा लिया, नबी के दीन को पामाल कर दिया। अक्सर हम गलती करते, गाड़ियों में सफर कर रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफर कर रहे और वो ओबाश किस्म का ड्राइवर वो दुनिया को रोनता हुआ जाता है, उसके आगे गरीब मोटरसाइकिल वाला आ जाता है, वो उसे हिट करता है और उसे रोड से बाहर फेंक देता है। जब ट्रैफिक पुलिस वाले आते हैं, सवारियां अपने ड्राइवर का साथ देती है कि हमने इसके साथ सफर किया है, हमने आगे इसके साथ सफर करना है। ये हक नहीं है, यह करवा परवरी है, ये इतने से मफादात के लिए अरबों का घाटा और सौदा है। अपने खानदान में अगर कोई मामला हो, पहले मुनसिफ न बनो, जज न बनो, सालिस न बनो। हुजूर ने मना किया इससे भी कि यहाँ नफरत, दुश्मनियां पैदा होती हैं। हम जज की सीट पे बैठने को फख्र महसूस करते हैं और फिर उसके बाद हक नहीं कह सकते, हक मनवा नहीं सकते, हक का साथ नहीं दे सकते। अपने खानदानी झगड़ों में भी हक को न छोड़ो। जो शख्स दुनिया में हक का साथ देता है, अल्लाह पाक हक है, अल्लाह का नाम हक है, हक उसे क़यामत की तन्हाइयों में तन्हा नहीं छोड़ेगा। अल्लाह पाक हक का फैसला करेंगे उसके तराजू के मामले में। आज इस दुनिया के अंदर लगे हुए तराजू को पामाल न करो, इस दुनिया में लगे हुए निजाम के साथ चलने की कोशिश न करो, बल्कि हक का साथ दो। कड़वा हो, रिश्तेदारों के खिलाफ हो। 5वां सिपारा हमें कहता है इंसाफ को न छोड़ो, अदल को न छोड़ो। तुम्हारे अपने रिश्तेदार के खिलाफ गवाही जा रही हो, अगर हक बात उसके खिलाफ है, हक कहो। ये मेरे नबी की 5वीं नसीहत थी। इंशाअल्लाह अगली 2 नसीहतें अगले जुमे में बयान होंगी। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।